This is an important political battlefield that is going to, in fact, witness intense battle here in Bihar. Darbhanga is one of the largest cities of Bihar, a very important cultural destination. Many call it the cultural capital of Bihar as well. And 10 seats of Darbhanga, and all eyes, every political party. Remember, the Prime Minister came here. Rahul Gandhi, in fact, campaigned in Darbhanga. And also, tomorrow, Yogi Adityanath is taking out a road show here in Darbhanga. Tomorrow, remember, is the last day of the campaigning for the first phase of elections, which are due on 6th of November. I am, at this moment, ladies and gentlemen, coming to you. I spent the whole day in Darbhanga from the planetarium, the Tara Mandal here. It's dark, but, there are certain things that gives you a sense that maybe the wheels of development are finally started to churn as far as Bihar is concerned. Let me very quickly give you the political context of Darbhanga. It's in the Mithilanchal area, and 10 seats of Darbhanga last time gave overwhelming response to the NDA. At that point of time, VIP, that is Mukesh Sahni's party, was with in fact, the NDA. And out of the 10 seats, they won 9 seats from Darbhanga. So if the Mahagathbandhan has any chance of trying to, in fact, form the government this time, Darbhanga becomes very, very important for them. Out of the 10 seats, they will have to, in fact, put some reverses when it comes to the NDA, the ruling alliance. This time, of course, one other interesting thing about Darbhanga is that apart from the city, which has seen 5 times BJP being elected, we went across the city, overflowing drains, broken roads, and apart from that, on one hand is the civic situation, on the other is infrastructure like this, the planetarium or the technology park which has come up in the city. So has the airport. But BJP MLA has been winning for the last 5 times here, fighting his 6th election. On the other hand, ladies and gentlemen, there are 2 other constituencies out of the 10 which are very, very important. One is Alinagar, where Maitri Thakur has been, imported for the BJP. She's fighting the election. And the other one, where there is still a friendly fight going on between the VIP and the RJD. Tejaswi Yadav, interestingly, came and campaigned for the VIP candidate, while the Laltain, the RJD candidate, is seen as a rebel there. But apart from the political significance, I went today to the Lal Singh Mithilan, college, the university, to try and understand about what the young people want here. Darbhanga is, as I said, is a cultural capital. And here, music, history, all that is quite rich. People talk about that. They come from all across Bihar to learn music here in the university. I went to the music and arts department, and this is what the young people, on a musical note, had to say. शोर भागेले बड़ी जोर भागेले शोर भागेले बड़ी जोर भागेले वोट गिरावा चलियो अब ता भोर भागेले वोट गिरावा चलियो अब ता भोर भागेले शोर भागेले बड़ी जोर भागेले शोर भागेले जोर भागेले वोट गिरावा चलियो अब ता भोर भागेले वोट गिरावा चलियो अब ता भोर भागेले I just read one of inside this building, and I'll tell you about this building as well, where words fail, music begins. I am right now in Darbhanga, and this is known as the cultural capital of Bihar. In Darbhanga, my first stop is the Ellen Mithila University's Music and Arts Department. This is the Music and Art Department, and by what you would be hearing, the sound which is coming from inside,
you would know how talented these young musicians, those who are doing their master's course, especially, of course, in the Mithila music, keeping the culture alive. We'll try and just understand from them where do they see themselves going. And this also becomes significant because Darbhanga has 10 assembly constituencies. One of them is Alinagar, where Maithili Thakur, the cultural icon, young musician, is also fighting the election from. मैं प्रोफेसर पुष्पम नारायण, डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डीन एकेडमिक्स हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, और इस डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। और ये डिपार्टमेंट 10 अगस्त 1984 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और तब से यहाँ निरंतर पढ़ाई चालू है। मैं भी यहाँ की छात्रा रही हूँ और अभी ये जितने भी हैं छात्र छात्राएं हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं। इससे बेहतर मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती थी मेरे। और ये जो आप सुनते हैं, ये जो जिंदाबाद जिंदाबाद की चल रही हैं, कानों में बड़ा दुख नहीं होता सुन के? इतना सुरीला आप लोग गाते हैं, उसके बाद ये जिंदाबाद वाले स्कूटर घूमते रहते हैं। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप लोग क्या गा रहे थे? पहले तो मुझे बताइए कि अभी जो आप गा रहे थे वो क्या कॉम्पोजिशन? वो हम लोगों ने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग गाए जाते हैं, तो हम लोगों ने राग मधुवंती में एक छोटा ख्याल किया जो 3 ताल में लिपिबद्ध थे, तो उसमें हम लोगों ने एक छोटा ख्याल गाने की कोशिश की। आप सब लोग बिहार में अलग अलग जगह से आते हैं या सब यहीं दरभंगा से? सब अलग अलग जगह से आते हैं। आप लोगों को लगता है म्यूजिक में करियर है, एक फ्यूचर है, या मतलब क्योंकि बहुत ऐसा नहीं लगा कि मॉम डैड ने, माता पिताजी ने बोला कि भाई कुछ और कर लो, लोग बीपीएससी और इन सब की तैयारियां कर रहे हैं, तुम लोग अगर म्यूजिक में रहोगे तो कैसे बढ़ोगे आगे? या लगता उनको भी लगता है कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी म्यूजिक से भी होती है ना, बीपीएससी का एग्जाम होता है, फिर क्या बोलते हैं एस्टेट हो गया, सब होता है जी। इसलिए सोर्स है, बहुत ज़्यादा सोर्स है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में आप लोग क्या राय? पसंद है आप लोगों को मैथिली ठाकुर? बिल्कुल पसंद है। आइकॉन है युवाओं की, मतलब जो। अच्छा, तो ये बताइए कि वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं। इससे पहले आपने सुना है उनको, देखा है उनको? तो मेरा कहना है कि युवा को तो आना ही चाहिए राजनीति में। क्योंकि एक उनके तरफ से ये आता है कि हम लोग, आप यहाँ नहीं रहती हैं, ये करती हैं, कुछ भी उनका पर्सनल है वो। तो लोग तो सवाल जवाब करेंगे क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो। तो इट्स हर डिसीजन कि वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको ला रही है तो कार्यकर्ता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जनता तो अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि ये सब स्टार लोग आ जाते हैं, चाहे खेसारी हो, मैथिली हो, कोई भी हो, आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद फिर वो चली जाएंगी, फिर वापस चले जाएंगे वो लोग अपना फिल्मों में, अपना म्यूजिक में, तो फिर जनता को कैसे, वो क्षेत्र का काम कैसे करेंगे? व्यू में आप सोचेंगे तो नेता लोग भी तो चले जाएंगे, वो कौन सा बैठे रहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप किसको चुनोगे। तेजस्वी आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा ब्रिलियंट फेस है सामने लाने के लिए। वैसे तो बीजेपी के पास भी कोई एक चेहरा नहीं है। चिराग पासवान तो वो तो अपने ही पॉलिटिक्स में SC/ST उसी में समेट के रह गए, तो हमको नहीं लगता कोई। तो म्यूजिशियन के साथ साथ पूरी फुल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मतलब पूरा बिहार समझा दिया आपने हमको यहाँ बैठे बैठे। थोड़ा पहले पॉलिटिक्स में थोड़ा था। दरभंगा में इतने सालों से बीजेपी जीत रही है, शहर में तो जीत रही है ना। तो अभी मैं आपके जब यहाँ पर आ रहा था तो सड़कें बड़ी खराब हैं, बाहर देखो पानी इतना भरा हुआ है। तो क्या इन सब चीज़ों का कुछ मैटर करता है, या फिर यही सोचकर कि वो आ जाएगा तो उसका डर है, या वो आ जाएगा तो उसका डर है, लोग इसी नाम पर वोट दिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक कि देखिए, अभी विधायक में जो हमारे यहाँ क्या है, ललित यादव तो ग्रामीण का हो जाते हैं, शहरी में है अभी संजय सरावगी जी। वो अभी बहुत सारे, ग्रामीण इकलौती सीट थी जो पिछली बार महागठबंधन जीता जी। तो शहरी की बात हम करते तो यहाँ बहुत अच्छे अभी सड़क के निर्माण करवाए जा रहे हैं, जैसे ब्रिज की भी बात हुई है तो अभी उसका भी काम चल रहे हैं। और ग्रामीण की बात करते तो वहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। वोट है सब लोगों का,
तो वोट डालने जाएंगे ना सब लोग, तो क्या सोच के वोट डालेंगे? अब जो सही करेगा, जो मतलब युवा होंगे, मतलब जो पढ़े लिखे होंगे, जो आगे तक बढ़ा सकते हैं, उनको वोट देंगे। कौन कौन आपको लगता है इस पैमाने में फिट होता है? मेरे लिए तो आरजेडी ठीक है। आरजेडी है। कौन ऐसे ये लोग हैं, या क्योंकि राष्ट्र वोट आप लोग डालने जाएंगे, आपको लगता है कोई स्पेसिफिकली संगीत को लेकर कोई बात कर रहा हो, कोई पॉलिटिशियन, कुछ लोग, या कोई पॉलिटिकल पार्टी? ऐसे सांस्कृतिक कोई भी मतलब ये हो, इसके लिए तो नीतीश कुमार जी ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि वो और आगे करेंगे, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार आए। तो शिक्षा जो व्यवस्था है बिहार का वो ध्वस्त है। 12 यूनिवर्सिटी है उत्तर बिहार में। आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का आगम देख लीजिए कितना खराब हुआ है। देखा मैंने, हाँ। और देखिए यहाँ पूरा यूनिवर्सिटी, ललितनारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो भी है, इसका इसमें ना ही प्रोफेसर है सही से, ना ही सही से पढ़ाई होता है, और ना ही सिलेबस कंप्लीट तो होता ही नहीं कभी। आप लोग जब वोट डालने जाते हैं, सब युवा लोग, तो मम्मी पापा के कहने पे वोट डाल देते हैं कि इसको वोट डाल दो, हमको वो पसंद है, या अभी तक परिवार में जिस तरीके से वोट डलते आए कि फलानी जाति या फलाना हमारा कैंडिडेट है उसको सोचकर वोट डालते हैं, या आप लोग अपने हिसाब से अपना मन बना के वोट डालते हैं? अपने हिसाब से, किसी के कहने पे नहीं डालते? हाँ, ये सब कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली तो जाके सब वोट तो उसी पे करते हैं ना सर। भूमिहार है तो हम भूमिहार को डाल देंगे, यादव है तो हम यादव को डाल देंगे। कभी भी जो है जातिवाद पे इलेक्शन या वोटिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। हम लोगों को हमेशा कोई भी हो, कोई भी विधायक बने, चाहे जो भी बने, रोजगार पे थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई भी हो। ऐसा तो है, लेकिन पहले जो 20 साल में जैसे लोग कहते हैं कि जंगल राज था, तो उससे तो सुधार आया है अब। और मैं चाहूँगा कि अपने मिथिला से अगर मैथिली ठाकुर जी निकले तो हम स्टूडेंटों के लिए सुधार इस तरह से होगी। पटना में जैसे कई टीचर हो गए, विद्यार्थी हो गए, एसएससी के जो पेपर जो लीक हुआ था उस पर जाके कितना डंडा जाके बरसाया गया था, तो उसमें कहाँ सुधार? जंगल राज से तो पहले जाके खराबी लग रहा है ना। दो की राजनीति किसी भी पार्टी अभी तक नहीं कर रही थी 2020 के चुनाव तक। इस चुनाव में एक प्रशांत किशोर के आने से थोड़ा सा मुद्दा में बदलाव हुआ है। इस बार की चुनाव जो है वो रोजगार और पलायन, दो ही मुख्य मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। रोजगार चाहिए। हम आप आए जिस आप मतलब डिपार्टमेंट में हैं, सब स्टूडेंट को रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए अभी तक कोई नहीं बात कर रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि मतलब आप 20 साल से देख रहे हैं, उसका कम से कम एक बार परिवर्तन करके देखिए। जैसे तेजस्वी यादव रोजगार के हर मतलब भाषण में अपना रोजगार की बात कर रहे हैं, वैसे ही मतलब एक बार परिवर्तन करके देखिए और उसको मतलब रोजगार को। एक बार मतलब जंगल राज बीजेपी वाले बार ऐलान कर रहा था। उस जंगल राज में हमारे मिथिलांचल में लगभग 400 मतलब कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, वो जब सब बंद कर दिया है 2005 के बाद। लेकिन वो जंगल राज आज के जंगल राज में बहुत आकाश पता है। खास इस सर जंगल राज पहले जंगल राज था, अभी महाजंगल राज है। दिन दहाड़े देखिए गुंडागर्दी कर रहा है विधायक खुद। अभी आचार संहिता में विधायक खुद आत्महत्या कर रहा है, सरकार चुप बैठा है, सरकार को एक्शन नहीं ले रहा है। हाँ, हत्या कर रहा है, गोली से भून दिया। कर तो लिया उसको, अनंत सिंह को अंदर कर दिया। अनंत सिंह को सर वो दबंगगिरी कर रहा है, वो खुद कह रहे हैं नीतीश बाबू सुशासन का सरकार है, तो ऐसा व्यक्ति को टिकट क्यों दे रहे हो? वो तो उसके सामने सूरज भान को टिकट भी तो इन्होंने नहीं दिया ना, सूरज भान की पत्नी को। वो कोई दूध से धुले थोड़ी। नहीं, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर मान लीजिए उस समय में विकास नहीं हुआ, तो अभी डबल इंजन का सरकार है, तो यहाँ तो विकास होना चाहिए। अभी का मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं, ये तेजस्वी का। तो सबसे मुझे अच्छा क्या लगा पता है कि स्टूडेंट कोई भी फॉर्म भरेगा ना, तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फॉर्म भरा जाएगा। हम कुशेश्वर स्थान से। कहाँ से? कुशेश्वर स्थान, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी विकास किया है, पहले से बहुत अच्छा विकास किया। जब तक विकास नहीं किया सर, तो हम लोग जानते हैं कुशेश्वर स्थान के पश्चिमी में आते हैं, तो नाव से चलते थे, बोट से। हाँ, अभी ऐसा 56 एक के बार जाते हैं, 3 घंटा में 2 घंटा में पहुँच जाते हैं दरभंगा। तो विकास कहीं ना कहीं किया है, विकास नीतीश कुमार भी किया है। बस उनको अब चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को टाइट मजबूत करें। उसको आपको लगता है नीतीश जी को भी वापस आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। हिसाब से सरकार नहीं चलाते हैं, अब सत्ता दूसरे के हाथ में। नीतीश जी नाम के हैं, काम कोई दूसरा। पूरा नाम बताओ, एक पूरा नाम बताओ अपना। नीतीश जी अपना पूरा नाम। हंस कुमार पंडित। हाँ, नीतीश कुमार। लोग कहेंगे पंडित जी तो बीजेपी कमल छाप वाले हैं।
हम लोग कुम्हार जाति से आते हैं। इस बार परिवर्तन चाहिए और नीतीश कुमार जो है उनका दिमागी हालत सही नहीं है और वो दूसरे के बलबूते उनका काम चल रहा है, सरकार वो खुद नहीं चलाते हैं। All right, so these were some, students of who are learning music. It's, a lot of people come here. It's a fantastic thing that they do and have a lot of hopes. Some talking about change, some happy with the current system. But about 10 years ago, in 2014, like I'm standing at this landmark planetarium here, there was one another big promise that was made and which has again been made by the ruling dispensation of technology park, food processing parks across Bihar. In November 2014, when Ravi Shankar Prasad was the technology minister, he had promised that Bhagalpur and Darbhanga very soon will have software technology parks. It has taken 11 years for that promise to be fulfilled. Finally, a software technology park is there in Bhagalpur, in Darbhanga. But has that helped the entrepreneur or the startup ecosystem here? I went to that park to find out. Way back in 2014, somewhere around November, Ravi Shankar Prasad of the BJP was the Information and Technology Minister, and he had announced that Darbhanga will be one of the cities which is very soon is going to see the software technology parks which will be developed in Darbhanga. This was an attempt to encourage the local entrepreneurs and bring the IT sector in Bihar as well. I'm in Darbhanga today, and finally it took more than 10 years. The STP, the Software Technology Park in Darbhanga, is ready. Now, it was inaugurated in fact, a few months back in July. This is the building of the STPI here in Darbhanga. And what we are here to see is, after the time that it took to construct, how has it helped the local entrepreneurs, startups, and what is the situation? Where are the people? How many industries have come in? Let's take a look inside the Software Technology Park here in Darbhanga. So this is the new building of the Software Technology Park here in Darbhanga. So new that you will still wait. There is nobody at the reception at this moment. It looks like this thing is completely empty, at least at this moment. But there is one company that operates from here. So what we'll do, we'll try and go to that entrepreneur, the startup, which is operating from this STPI here in Darbhanga. क्या है आपकी कंपनी, क्या करती है दोस्त आपकी कंपनी? बेसिकली आपका स्टार्टअप है ये? बेसिकली हमारी कंपनी का नाम अभी केयर्स है। हम लोग स्टार्टअप बिहार से फंडेड है और स्टार्टअप बिहार से आप लोग फंडेड है। गवर्नमेंट से सीड फंड भी मिली है हम लोगों को। स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज है और IIM बोधगया से इक्यूबेटेड है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो गैप देख रहे थे, हम देख रहे थे कि बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज है, जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के मतलब अच्छे से सर्विसेज दे रही हैं। बट जैसे सर्विसेज से मतलब है जो आपको डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली बड़े सिटीज में मिल रहा है। तो उसी प्रॉब्लम्स को हमने सिंपली दरभंगा जैसे छोटे छोटे शहरों में सर्व करने का प्लान करके यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, दरभंगा में पिछले हम 3 साल से वर्क कर रहे हैं और मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो बहुत अच्छा यहाँ के लोगों का मतलब फीडबैक है, रिस्पॉन्स। ये आपका ब्रोशर्स है? हाँ, ये हमारा ब्रोशर्स है जिसमें कि हम लोग सर्विसेज प्रोफेशनल्स एट योर स्टेप, प्रोफेशनल सर्विसेज है, प्रोफेशनल्स एट योर डोर स्टेप, जिसमें कि सर ये तो नॉर्मल हो गई कि जैसे
नॉर्मल सी ये है कि मतलब यूजर्स की जो होते हैं आम लोग उनके लिए सर्विसेज है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि आप सुनते होंगे कि बिहार में पलायन बहुत होता है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है सर कि जैसे लोग पर डे वर्क करते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती ही नहीं है। सबसे पहले तो सब दिन वर्क मिलता नहीं है। अगर 30 दिन का एक मंथ है तो मुश्किल से वो लोग 10 से 12 से 15 दिन ही वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने पहले से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। दूसरा क्या है कि उनका स्टेबिलिटी नहीं है इनकम का, तो इसीलिए वो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर वो 20,000 एग्जैक्ट मिलता है ना महीने का, तो वहाँ अच्छा समझते हैं ड्यू टू कि बिहार में अगर 10,000 भी कमा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है ही नहीं। तीसरी बात है कि यहाँ जैसे पेंशन सब सुनता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन से मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पेंशन जैसी सुविधा कुछ मिलती नहीं है, ना इंश्योरेंस मिलती है, ना फिर फाइनेंशियल सब फ्यूचर में कुछ सपोर्ट का कुछ कोई वादा कर पा रहा है। क्या चैलेंजेस आप एज एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे फेस कर रहे हैं? यहाँ पे मतलब मैक्सिमम हम 2-3 चीज़ें जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस यहाँ पे ये है कि टीम बनाना। यहाँ पे अगर हम टीम बनाने के लिए किसी भी कॉलेजेस में अगर प्लेसमेंट के लिए हम जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के रिज्यूमे हमारे पास आते हैं जॉब्स के लिए, जैसे IT पार्क जैसी हम पहली कंपनी बनी तो हमारे पास एटलीस्ट 100+ रिज्यूमे आए जॉब के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्किल्स है ही नहीं। यहाँ के बच्चे यहाँ के MBA कॉलेज में MBA कर चुके हैं, वो HR से MBA कर लिए हैं, बस उसको HR का मतलब तक नहीं पता है। फाइनेंस से MBA कर चुके हैं बट उसको फाइनेंस का मतलब तब नहीं पता है। लोग CS से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है बट उसको एग्जैक्ट कोड क्या होता है, कंप्यूटर्स में क्या क्या टूल्स होते हैं वो तक नहीं पता है। तो इन सब चीजों पे यहाँ के लोगों को यहाँ के सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। स्किल की प्रॉब्लम है, स्किल्ड एजुकेशन की प्रॉब्लम है, क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैं अगर आपसे अंत में पूछूं, क्योंकि अभी इलेक्शन सीजन भी है, किससे आपको होप दिखाई पड़ती है? किस क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं? स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहे हैं या क्या चाहिए? क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में। मैं पिछले 3 साल का बिहार सरकार का एक डेटा बता रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट 3 साल पहले बिहार सरकार के पास स्टार्टअप्स मुश्किल से 5-10 रहे होंगे, ठीक है, जब से मैं स्टार्टअप बिहार में 3 साल से चुना हूँ। और 3 साल के बाद 1500+ स्टार्टअप को बिहार सरकार ने फंड कर चुके हैं। सीड फंड 10 लाख का एक सीड फंड होता है, वो कर चुका है। 1500+ स्टार्टअप्स अभी बिहार में काम कर रहे हैं, चाहे वो अभी आइडिया स्टेज में है, MVP बना चुके हैं या स्केलिंग स्टेज में है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन गवर्नमेंट फंड दे चुकी है कि आप जमीन पे जाओ और काम करना शुरू करो। मतलब अगर ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अगर बेटर हो जाएं तो आप लोगों के लिए अपने आप को स्केल करना में और आसानी होगी और बेहतर होगा। बहुत बेहतर होगा। चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या नहीं हुआ है, हो रही है। इसमें और बेटर करने के लिए सबसे पहले लोगों को और यहाँ के आम लोगों को ज्यादा समझना होगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे वही है, क्योंकि गवर्नमेंट बना के दे रही है सारी चीजें बट उसको मेंटेन हम कर ही नहीं पा रहे हैं।